Welcome to the Palan Poshan podcast presented by Baby Forest. And today we are excited to have Ishina Sadana, a certified coach and a trainer in the field of parenting and childhood studies. She has helped and guided 25,000 parents through her workshops and personal sessions. She has recently published her book, Power to the Parent, and she runs a full fledged professional course on being a positive parenting coach, which aims to help spread this knowledge to parents and mentoring professionals who can help themselves and other parents. Thank you so much for coming over here, Ishina. How are you today? I'm doing well. Thank you for having me. Thank you so much. You accepted our invitation, and since you are here, it is a great deal for us because we deal into this particular segment which talks about baby care and parenting. And to have you over here on this podcast is something which we are really looking forward to, and we really want to understand your expertise. We want to know more about happy parenting. We want to learn from you. So I think this is the conversation is going ahead. आप हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो आज के सेशंस में. Thank you so much for taking this initiative to help your parents with whom you're dealing with. And मतलब बेबी प्रोडक्ट्स का ब्रांड कितने पेरेंट्स से कनेक्टेड है, तो आप सोचिए ये चीज अब कितने तक जाएगी. सो आई थिंक दैट्स अ गुड ब्यूटीफुल इनिशिएटिव. ये इनिशिएटिव हम लोगों ने इसलिए लिया है बिकॉज आवर कम्युनिटी ऑल्सो इज वेरी मच ड्रिवन टूवर्ड्स द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो. हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि आज के टाइम पे जो मदर हैं, इवन फादर ऑल्सो, दे आर वेरी असर्टिव. It's not a matter of buying just only one product. It's also a matter of upbringing, giving right upbringing to their children. So अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, अपने यूजर्स को हेल्प करने के लिए, अपने कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए एक ये छोटा सा इनिशिएटिव है बाय बेबी फॉरेस्ट. एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम उनको कुछ एक्चुअली में आर्टिकुलेट और इंटेलेक्चुअल चीज़ें बता पाए. सो दैट्स आवर विश एंड दैट्स व्हाट वी होप फॉर. So let's go ahead. Yes, please start. So आप इशना बहुत टाइम से ये पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में बात करते आए हो. मैंने आपकी जर्नी देखी है. इट्स बीन सो लॉन्ग. You have been working and you have been mentoring other people also. You have given so many workshop and sessions. आपने एक तरीके से पूरा इसका I would say PhD टाइप का अपने, you are a PhD holder for that fact, but you have learned so much about parenting. आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसे आया है इसमें? Why this particular thing, happy and positive parenting? So basically I was always in this field. मैंने मास्टर्स चाइल्ड डेवलपमेंट में किया, ह्यूमन डेवलपमेंट में किया, PhD किया, फिर पेरेंटिंग का ही टॉपिक ले लिया. सो थीसिस भी उसी में किया. एंड व्हाइल आई वाज कंप्लीटिंग माय थीसिस आई बिकेम अ मॉम. और वो जो सब मैंने पढ़ा था वो मैंने अप्लाई किया. और मुझे रियलाइज हुआ कि थियोरी अलग, प्रैक्टिकल अलग. एंड माय ट्रू लर्निंग एक्चुअली विद माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इट केम out when I started practicing it with my son. I realized what actually works, what does not work and why it does not work. Theory में अच्छा लगता है तो practically क्यों नहीं हो पाता, वो भी समझ में आया. And I started talking to parents. Personal sessions ने मुझे इतने insights दिए, तो अपने experience के beyond मैंने उनसे सीखा कि हर घर में क्या हो रहा है. Why are children behaving the way they are? ये जो हम empathy कहते हैं ये क्यों नहीं work करती है कभी कभी. पेरेंट्स ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम एम्पथाइज करते हैं फिर भी बच्चे नहीं सुनते, हम इतना समझाते हैं फिर भी बच्चे नहीं सुनते, हम जेंटल होने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी बच्चे नहीं सुनते. तो वो लूप होल्स कहाँ हैं, वो इंटरेक्शंस में कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इंटेंशंस कितने पॉजिटिव हैं. एक पेरेंट के इंटेंशन से बेटर इंटेंशंस एक बच्चे के लिए किसी के नहीं हो सकते. Definitely not, yes. तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ एरर हो रहा है. आई गॉट दैट. And that's how I came to writing this book also, because of so many parents who helped me with their personal situations they shared with me, and I got these insights. आपने वो सीक्रेट क्रैक कर लिया है कि एक राइट अप्रोच क्या होती है बच्चों के साथ डील करने का, एंड वही आप सीक्रेट अपने सेशंस और वर्कशॉप में आप इलैबोरेट करते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सीक्रेट नहीं बोलूंगी मैं इसको. हाँ. और अल्टीमेटली कोई वो है ही नहीं, कोई देयर इज नो मंजिल, वो कहते हैं ना, देयर इज नो एंड टू लर्निंग. तो मैं वो सीक्रेट अभी भी लर्न करने की कोशिश करती रहती हूँ, पर बहुत हद तक समझ आ गया है कि हो क्या रहा है घरों में और क्या कर सकते हैं हम. छोटी छोटी चीजें हैं अपूर्वा जो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ चेंज करेंगे और हमें बड़े बड़े रिजल्ट मिलेंगे. वी डोंट हैव टू गो बियॉन्ड. हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए उन्हें नहीं भेजना. हम अपने इंटरेक्शंस के बीच में उनको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा सकते हैं. तो वो समझ आया मुझे.
नहीं, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की। अ, म- मैं आपसे अगर अभी डिस्कशन स्टार्ट भी करूँगी तो मैं आपसे डेफिनेटली यही पूछना चाहूँगी कि इफ़ यू कैन शेयर वन ऑफ योर एक्सपीरियंस व्हाइल गिविंग सेशंस टू पेरेंट्स एंड वर्कशॉप्स टू पेरेंट्स, आपने जो अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट केस हैंडल किया हो। लाइक we'll start with this particular topic only because we want to understand कि it's not easy raising a child, it's not easy. मतलब people do say कि नहीं, have a family, you know, become parents. It's very easy for them to just say, and it's not easy to have a child also nowadays. But yes, raising a child is completely a task. It's a job itself. So if you can share one of your difficult cases, I would say, with us. देखो, I'll answer this in this way. ज़्यादातर जब पेरेंट्स आते हैं सो दे आर कमिंग विद द पर्सपेक्टिव दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद माई चाइल्ड एंड आई नीड टू सॉल्व इट. माई चाइल्ड इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, माई चाइल्ड इज बिहेविंग वेरी डिफाइंड, बात बिल्कुल नहीं सुनता है, बिगड़ गया है, स्क्रीन से अलग नहीं हो पा रहा है. ज़्यादातर बिहेवियरल इश्यूज लेके मैक्सिमम पेरेंट्स आते हैं. केस डिफिकल्ट ये देखना नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है. केस डिफिकल्ट इस वे में होता है कि पेरेंट्स का ये पर्सपेक्टिव कैसे शिफ्ट किया जाए दैट इट्स नॉट ओनली द चाइल्ड, इट्स द एनवायरनमेंट दैट नीड्स टू चेंज एंड हाउ दैट एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग द चाइल्ड. और वो एनवायरनमेंट में सबसे पहले अपूर्वा कौन है? पेरेंट्स. तो फिर ये तो इन अ वे व्हेन आई एम टॉकिंग टू पेरेंट्स, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है हाउ टू कनेक्ट विद द पेरेंट and empathize with them. Like I'm telling them to empathize with children, I need to first validate and empathize with them. And to connect with them enough so that मैं उनको इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में लेके जाऊँ. और मेरे लिए सबसे बड़ा विक्ट्री तब है जब पेरेंट खुद बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे में ही मैंने ही कुछ गलती करी है, नहीं अब मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पहुँचना है मैंने. मैं उनको अगर बताऊंगी कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, नहीं यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो वो बोलेंगे कि नहीं, दे विल डिस्कनेक्ट विद मी. So for me to help them connect with that soul, I believe, for them to realize what they can make right for their child. So that is the biggest challenge. For example, there was this mother, बाहर रहती थी, इंडियन थी पर बाहर रहती थी. वो उनका 6 साल का बच्चा था और वो कहती थी मेरे बच्चे में ना बिल्कुल अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेता, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है. और शी केप्ट टॉकिंग अबाउट हाउ द चाइल्ड इज फीलिंग, हाउ ही इज नॉट, अपने फ्रेंड्स के बीच में उसकी कोई गलती नहीं होती, सब लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं, फिर भी वो अपना स्टैंड नहीं लेता. मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, इसीलिए मैं इतनी कंसर्न हूँ कि आगे कैसे जाएगा. एंड फॉर इन 1 hour सेशन 40 minutes 35-40 minutes हम ये बात कर रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. By 35 minutes, she then opens up. Maybe she was a little hesitant to open up that recently, 2 years back, her husband left her in the country. Okay. Because of which there was a lot of trauma that she went through. Mother. The mother. And in the last 2 years, because of that, she has been very hard on her child. इन अ वे दैट बहुत गुस्सा आ जाता था, नहीं रेगुलेट कर पाते थे. जब उसका बच्चा बोलता था कि पापा गंदे हैं तो भी वो उसको गुस्सा करती थी, गंदे नहीं बोलना. जब वो थोड़ा भी पूछता था तो भी वो गुस्सा करती थी, पूछ क्यों रहे हो. जब भी वो बाहर कहीं खेलने जाता था, उसने मुझे बताया कि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि फ्रेंड्स ने बोला इसकी गलती है, तो मैंने कोई इसकी बात भी नहीं सुनी, मैंने इसको चिल्लाना शुरू कर दिया. तो ये सारी बातें बातों बातों में आनी शुरू हुई और क्या हो रहा है. एंड देन वी रियलाइज दैट द चाइल्ड इज फीलिंग सो डिसरिस्पेक्टेड दैट उसकी वर्थ ही कम हो गई है उसके सामने. मतलब उसको यही नहीं लगता कि कोई उसका स्टैंड लेगा, तो वो अपना ही नहीं ले रहा. ट्रू. मतलब उसको ये फीलिंग आने लगा कि व्हेन माय मदर इज नॉट लिसनिंग टू मी, why would anybody else would listen? Yeah, he's quietly listening all the criticism, taking it as it is. He doesn't have the energy to deal with anything because he's feeling so low because of the environment. And then when she opened up, then at this point mostly parents feel very overwhelmed. They break down also. They realize it also. And that's when she started changing herself towards her son, and she saw a lot of improvement. But you know what, Apurva, to add to this, mostly when parents come to me, for their children, they need help. And it's not that I'm here and they are here and I'm saying they need help. We all need help. Yeah.
in our parenting sometimes. आई बिलीव आपके सेशंस में पेरेंट्स को भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल सेशन मिलता है वेयर दे आल्सो ओपन अप एंड दे टॉक सो मच अबाउट देमसेल्व्स. It's a very big part. So it's a mental, relaxation for them also, because they are talking to you as a healer, as a counselor. So ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. So how did you help that boy then? I had to help the parent. So you helped the mother first, and then mother helped her son. Yeah, I had to help her. I had to understand her. और ये तो चलो एक एक्सट्रीम केस है. ज़्यादातर जब पेरेंट्स आ रहे हैं, उनका इनर चाइल्ड कितना वुंडेड होता है, उनके कितने सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं. एक पेरेंट मुझे कहता है वो पढ़ती नहीं है. पता चलता है कि वो पेरेंट का स्टडीज के साथ इतना नेगेटिव एसोसिएशन रहा है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो भी वो स्ट्रेस लेना नहीं छोड़ रहे हैं. और अब वो मेरे पास आ रहे हैं कि बच्चा बहुत स्ट्रेस लेता है पढ़ाई को लेके. वो एक्चुअली द स्ट्रेस हैज पास फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड. नाउ द पेरेंट फर्स्ट नीड्स टू डील विद इन हर सेल्फ अबाउट दैट इनर चाइल्ड जो उनका सफर कर रहा है. हीलिंग बच्चे तो आते ही हमें हील करने के लिए, वो ऐसे ऐसी जगहों पे टारगेट करते हैं हमें कि हमें हील होना ही पड़ता है. नहीं, that's really true. जब तक वो पिन पॉइंट नहीं करेंगे तभी हम शायद अपने लिए रेजिलेंट होते हैं, तभी हम अपने बारे में भी सोचते हैं आई एम नॉट एबल टू हेल्प माई चाइल्ड इटसेल्फ. यस, और मैं कमी वर्ड भी नहीं यूज कर रहूंगी. मैं कहूंगी कि हमारे अंदर इतनी एंग्जाइटीज हैं कि हम काम नहीं रह पा रहे. देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम काम रहने में क्या है. जैसे मैं बोलूंगी काम रहो, द फर्स्ट टिप दैट आई विल गिव टू एनी पेरेंट इज बी काम एंड देन हैंडल इट. है ना, कितना ऑब्वियस टिप है. बट द मिनट आई से इट, द पेरेंट इज गोइंग टू टेक अ बैक सीट कि ये मुझसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? एफर्ट नहीं करने या उतना पेशेंस लेवल नहीं है. अंदर एंग्जाइटीज बहुत है. कितने थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, कितनी जगहों से वो थॉट्स आ रहे हैं, कितना अंदर से कॉन्फिडेंस इशू है, या क्या स्ट्रेस है, किस तरह से हमारी पेरेंटिंग हुई है, हम किस माहौल से आ रहे हैं. नॉट टू ब्लेम आवर पेरेंट्स ऑल्सो, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट द वे इट इज. इन सब से बहुत फर्क पड़ता है इधर, बहुत फर्क पड़ता है. I would not like to name, but in my circle there is a friend. उसकी जो बेटी है, 4 साल की बेटी है, वो बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है. बट कुछ भी काम करने से पहले वो इतनी नर्वस हो जाती है. उसकी मदर इज़ वेरी आउट गोइंग, शी इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट, शी इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. बट हर चाइल्ड मुझे ऐसा फील होता है कि अंदर ही अंदर ट्रॉमेटाइज्ड है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, शी केम टू माई प्लेस एंड गलती से बस उससे पानी की बॉटल गिर गई थी, and that on a floor, not on a sofa, not on a couch, not on a bed, just on a floor. We can wipe it off. She started crying, and when she started crying, I was like, what is happening with her? Why did you scold her? Why she's behaving like this? So what I noticed that मेरी फ्रेंड ने उसको आंखें दिखा दी तो वो बिल्कुल नर्वस हो गई. नर्वस होते ही वो रोने लगी. सो डू यू थिंक दिस इज राइट, जस्ट टू डराओ अपने बच्चे को? देख लो आप रिजल्ट. हाँ, मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग, शी हैज जीरो कॉन्फिडेंस. शी कॉन्स्टेंटली स्टार्टेड सेइंग सॉरी टू मी. आई डोंट सी दिस इज अ राइट वे ऑफ पेरेंटिंग, और दिस इज अ राइट वे ऑफ raising a child. You are so appropriately giving an answer to your question yourself, but it's very apt. देखो बच्चों को it is so important for children to feel confident around their parents. Only then they are going to feel confident outside. अगर हम overpower करेंगे, हम लोग बहुत, देखो सुनाते बहुत है कभी कभी पेरेंट्स कि देखो क्या करा, मैंने बोला भी था आपको, गंदा हो गया ना, देखो मुझे साफ करना पड़ेगा, सुबह से मैं आपके लिए कर रही हूँ, फिर भी देखो मुझे करना पड़ा, प्लीज पीछे हो जाओ आप. फिर अब रोना क्यों शुरू कर दिया है आपने? अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने आपको कुछ बोला है, साइड पे हो जाओ. आप सिर्फ ये देखो कि वो माहौल में कितनी एंग्जाइटी और कितना ओवरवेल्म आ गया है. नाउ द चाइल्ड इज कम्प्लीटली सबमिसिव हो गया. दैट चाइल्ड, अच्छा ये भी नेचर टू नेचर होता है पूर्वा. चिल्ड्रन आर ऑफ डिफरेंट टेम्परामेंट्स. देखो हम नेचर और नर्चर दोनों की बात करेंगे, क्योंकि बच्चे अपना नेचर भी तो लेके आए हैं. एक हम नर्चर कर रहे हैं उनको. सम चिल्ड्रन, शी बिकेम मोर सबमिसिव, है ना, उसने अपना सप्रेस कर लिया इमोशन. सम चिल्ड्रन विल लुक मोर डिफाइंट. जो पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे या ज्यादा बात करेंगे, देखो ये तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, सुनती नहीं है, वो बच्चे कभी कभी आपको लगेगा कि बात ही नहीं सुन रहे, वो उल्टा ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, वो आपको लगेंगे बदतमीज हो गए.
वो रिबेल कर रहे हैं। एक सबमिसिव नेचर ले सकता है, एक रिबेल कर सकता है, कर सकता है, वो नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह का नर्चर कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। और उनकी क्रिएटिविटी, उनकी ऑथेंटिसिटी, वो सब कहाँ गई? वो भी दब रही है। It's a matter of just be patientful with your children, understand them. I mean, इस पर्टिकुलर केस में मैं शायद आपसे समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है इस केस में मैं यही सजेस्ट करूँगी अपनी फ्रेंड को कि इट्स ओके, अगर उससे गिर गया सो इट्स ओके, यू कैन टेल लाइक इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी या तुम साफ कर दो, गिव हर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन इट आउट और वट एवर। बट इंस्टेड ऑफ येलिंग, इंस्टेड ऑफ शोइंग आईज और इंस्टेड ऑफ आस्किंग हर टू अपोलोजाइज टू समवन इज आई थिंक उसके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना। देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग behind the scenes जो हमें पता नहीं है. This is just one episode, but what you say is right. We have to allow children to make mistakes. Allow them to make mistakes. Mistakes तो वो करेंगे ही करेंगे, आप नहीं भी allow करेंगे तो भी करेंगे, पर आपका response decide करता है how they are going to associate with mistakes. हम सब मिस्टेक्स कर रहे हैं. अगर हम मिस्टेक्स करने से वो डर गई तो देखो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन कॉन्फिडेंस से है. ट्रू. कॉन्फिडेंट वो थोड़ी ना है जो मिस्टेक्स नहीं करता. कॉन्फिडेंट तो वो है जो मिस्टेक्स करके आगे बढ़ जाता है. बिल्कुल. तो वो हमें बच्चों को अगर हमने वो वाली दे दी ना वैल्यू, तो वो उनको बहुत आगे ले जाएगी. नहीं, वेरी वेल सेड. आप जब तक मिस्टेक्स नहीं करोगे, आप लर्न नहीं करोगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे. वेरी वेल सेड. आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड, आपने जैसे बात बोली कि बच्चे रेबल करने लगते हैं. मैं इसी पर्टिकुलर चीज़ पे आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. एक पॉइंट आता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीन्स हियर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 5 and 6 year old. एक पॉइंट आता है जहाँ पे बच्चे इस एज पे भी रेबल करते हैं. वो किस तरह से रेबल करते हैं और आप मुझे समझाइए कि वो रेबल है या वो कुछ और एक्टिविटी है. यू आर ट्राइंग टू टेल देम कि बेटा आप ये मत करो, बेटा आप ये मत करो, बेटा आप ये चॉकलेट मत खाओ, बेटा आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट दे स्टिल डू इट एंड दे क्रिएट सो मच मेलोड्रामा कि शॉपिंग मॉल में फैल जाएंगे, आइसक्रीम स्टोर के आगे फैल जाएंगे, किसी टॉय स्टोर के आगे मतलब रोना धोना स्टार्ट कर देंगे. दे विल स्टार्ट येलिंग कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. इस तरह के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए अपूर्वा, वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं और ज़्यादातर हम बच्चों को जज करते हैं या पेरेंट्स को कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे ऐसा करते क्यों हैं. Children are doing this because they are feeling some emotions. वो अपसेट हैं. उनका एक अंडर डेवलप्ड ब्रेन है. एक 6 साल का 7 साल का बच्चा, आपने कहा हम टीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम 6-7 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग बिहेवियर है. एक 6 साल के बच्चे में और एक 26 year old में फर्क बिहेवियर में है कि नहीं? बहुत है. सिर्फ रोने धोने को अलग कर दो, अदरवाइज ये कितना डिफरेंस है. तो क्यों है? बिकॉज देयर ब्रेन इज वेरी अंडर डेवलप्ड. अभी वो डेवलप हो रहा है, इट्स इन द मेकिंग. तो उनके पास इमोशनल रेगुलेटर्स नहीं है. अगर आप अभी बच्चे को बोलोगे कि ये नहीं खाना तो वो जिद करेंगे, रोएंगे, कुछ भी अपने नेचर के हिसाब से करेंगे, जबरदस्ती करेंगे. ये इसलिए है क्योंकि जो भी वो फील करते हैं वो एज इट इज उनके बिहेवियर में आता है. देयर इज नो फिल्टर. That's why we say एक बच्चे का गुस्सा होना, जो हम बोलते हैं ना, इतना छोटा सा बच्चा देखो कितना गुस्सा करता है, कितना गुस्सा इतने से बच्चे में. तो इतने से बच्चे में इतना गुस्सा होना ज्यादा नॉर्मल है एक बड़े होने से. सही कह रहे हो. क्योंकि छोटे बच्चे के पास तो जो फील हुआ बाहर आ गया. हमारे पास तो है, हमारे पास तो है ना फिल्टर. तो ये समझ, जब हम ये बच्चों को इस तरह से देखेंगे दैट दे आर नॉट एंजॉइंग दिस, दे आर सफरिंग देमसेल्व्स, दे आर नॉट एंजॉइंग द होल process of people watching them and all that, they can't even understand what's happening, they need help. And when we overpower, ऐसे देखते हैं, या पेरेंट्स भी जब anxious हो जाते हैं, देखो आप हम बच्चों का रोना धोना देख रहे हैं और जो वो पेरेंट है, either that parent will shout at the child or that parent will get very nervous and anxious. क्या कर रहे हो बेटा, क्या हो रहा है, ये ऐसे नहीं करो, क्या कर रहे हो ये, आप क्या कर रहे हो. आप देखो ये काम तो नहीं है, ये पेरेंट गुस्सा नहीं है पर काम तो नहीं है. अब बच्चे का इमोशन था ही कुडंट रेगुलेट. अब पेरेंट का इमोशन आया, एम्बैरेस होने का, अपसेट होने का, घबराने का, वो भी नहीं कर पाए रेगुलेट. कौन कर रहा है रेगुलेट यहाँ पे इमोशन? तो अब बच्चा कैसे सीखेगा रेगुलेट करना? और ये तो हम पब्लिक प्लेस की बात कर रहे हैं. घरों में जब भी बच्चा गुस्सा होता है, रोता है, आपको लगता है पेरेंट्स रेगुलेट कर रहे हैं अपना इमोशन? तो बच्चा कहाँ से सीख रहा है रेगुलेट करना? पेरेंट्स से ही.
एंड अल्टीमेटली फिर पेरेंट्स कहते हैं बिल्कुल मेरी तरह गुस्सा करने लग गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे ही वर्ड्स बोल रहा है, ये तो मैं तो ये या मेरे अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ ऐसा ही बिहेव करता है जैसे मैं करती हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ बिकॉज चिल्ड्रन आर लर्निंग हाउ टू कोप विद सिचुएशंस। अच्छा, मम्मा पापा के हिसाब से जब कोई चीज नहीं होती है दिस इज हाउ दे बिहेव, अब मेरे हिसाब से जब कोई चीज नहीं होगी मैं भी ऐसे ही बिहेव करूंगा या करूंगी। एक तो यही चीज आती है। सो वी हैव टू what we do about this, या हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, is to first regulate ourselves. True. And understand that this is my 6-year-old behaving, not my 26-year-old behaving like this. He needs help. अगर हमने उन situations को ठीक तरह से navigate कर लिया ना अपूर्वा, तो they will be more emotionally intelligent. So आप मेरे को इस तरह से बताओ, मतलब हमारे यूजर्स को भी हेल्प करो। फॉर एग्जाम्पल 6 साल की बच्ची है और इररिस्पेक्टिवली चाहे उसके मॉम डैड बहुत अच्छा लाइफस्टाइल कैरी करते हैं घर में, वो खुद हेल्दी फूड खाते हैं, बट बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे तो चिप्स ही खाना है, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। वो खुद एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, प्रॉपर जिम करते हैं, योगा करते हैं, बट द चाइल्ड इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट। तब उस टाइम पे कैसे इम्पैक्ट बच्चों के अंदर क्रिएट किया जाए कि वट एवर मॉम एंड डैड इज़ फॉलोइंग इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो। तो बट उस टाइम पे बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे बहुत माँ कहती रह जाती है, पेरेंट पापा कहते रह जाते हैं, बट आज के टाइम पे पापा भी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं बच्चों के साथ। पहले भी होते थे बट अभी बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल बच्चे नहीं सुनते। तब हाउ शुड वी हेल्प आवरसेल्फ टू एक्चुअली मेक देम लिसन? Another beautiful question. देखो, बच्चे जिद करेंगे एंड 6-year-old पक्का करेंगे। 7-year-old पे तो हमारा ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ऐसा लेता है लीप कि टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं। हम लोग माइलस्टोन्स की बातें करते हैं ना अपूर्वा, आई विल कम बैक टू दैट, बट आपको पता है कि ये जो फिजिकल माइलस्टोन्स है ना, चलने के, च्यू करने के, क्रॉल करने के, इसी तरह से बिहेवियरल माइलस्टोन्स होते हैं। वो बिहेवियरल माइलस्टोन्स में टैंट्रम्स, आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। So a child who is arguing is actually just following their development. You know why? Because this child's brain is developing and now they understand that they have a voice. Yeah. अच्छा, और दूसरी चीज जब coming back to this कि अब ये 6 years पे 7 years पे they are saying कि नहीं मैंने तो चिप्स ही खाना है. So they have a voice. They are trying it. For the parent now is the time that while being calm and gentle, जो आपने कहा वो कर रहे हैं, अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, we have to set boundaries. यहाँ पे आता है कि अगर आप बच्चे को बोलते हैं नहीं खाना चिप्स, तो वो जिद करते हैं, वो रोते हैं, वो उनका टैंट्रम है। आप वो टैंट्रम देख लो, चिप्स मत दो। बाउंड्री, सो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टैंट्रम्स को कैसे हैंडल करना है। Whenever you are going to put a boundary, children are not going to like it. Who likes it? कोई हमको नो बोले हमें ही नहीं अच्छा लगता, हमें हमारे बच्चे हमें नो बोले हमें अच्छा नहीं लगता। तो जब हम बच्चों को नो बोलते हैं, they will also not like it. So when you are going to say no and they will not like it, remember they don't have filter. Yeah. तो वो बाहर आ जाएगा, गुस्सा, upset, frustration, disappointment, it will just come out. Now that's what is tantrum. They are just feeling an emotion that's coming out. In that moment, it's important that we keep the boundary intact कि बेटा चिप्स तो नहीं मिलेंगे. I know you're upset. आई नो आपको बहुत मन था ना चिप्स खाने का, मेरे को खुद इतने यम्मी लगते हैं, पर हम अभी नहीं खा सकते बेटा, क्योंकि हमने अभी लास्ट वीक ही खाए थे ना, या हमने कल ही, वॉट एवर रूल्स यू हैव प्लेस्ड कि नहीं बेटा वो अभी नहीं खा सकते। आई नो, अगर आप टैंट्रम को स्पेस देंगे कामली, बहुत ओवर इंडल्ज भी नहीं करना, ये हल्का हल्का एम्पथाइज करो, और टैंट्रम को स्पेस तो निकलने की, वो बॉडी में आया है वो निकल जाएगा। बच्चे कितनी देर टैंट्रम थ्रो करते हैं, आप देखो एक बच्चा जोर जोर से 10 मिनट रोने के बाद आपको 5 मिनट में लिखे ये रो भी रहा था अभी। ऐसे चेंज हो जाते हैं बच्चे। बट अगर वो फीलिंग आई है उसको स्पेस दो। द मिनट यू विल वैलिडेट, लेट इट पास, दे आर गोइंग टू बी फाइन एंड यू विल बी एबल टू फॉलो थ्रू द बाउंड्री। बाउंड्रीज को फॉलो करना कहीं ना कहीं इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जेंटल पेरेंटिंग को परमिसिव पेरेंटिंग से कंफ्यूज किया जा रहा है। एज अ पेरेंट, I have my 7-year-old, always wants chocolates, loves chocolates, sweets, has allergy, a lot of skin allergy because of these things, मीठे से हो जाती है। I am in a constant situation of putting that boundary. तो वो कोई happily तो नहीं मानता। There are times I'll have to say no और वो जोर जोर से रोएगा, या उसको बहुत बुरा लगेगा। बोलूँगी I know बेटा, I know but I love you too much to give you that chocolate. I love you too much. क्या हम वो बाउंड्री कंट्रोल कर सकते हैं? Is it not on us कि हम चॉकलेट दें या वो
चिप्स दें कि नहीं, वो तो हमारे ऊपर है ना। अगर आप बोलो सामने पड़ा है पैकेट और वो उठा के खा लेती है, तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा कि हम वो पैकेट कैसे हटाएं। इट्स अ 6 year old आफ्टर ऑल, उसमें तो इतना ब्रेन नहीं है ना कि वो रेगुलेट हर तरह से कर पाए। सो प्लीज कीप द बाउंड्री इंटैक्ट, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ दैट टैंट्रम। टैंट्रम विल कम, लर्न टू मैनेज इट। इशिना, आपने बात करी डिफरेंट सेट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे आपने जेंटल पेरेंटिंग की बात करी, आपने परमिसिव पेरेंटिंग की बात करी। सो मेरे यूजर्स को, मेरी कम्युनिटी को बहुत हेल्प होगा इफ़ यू कैन एनलाइटन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग, इफ़ यू कैन शेयर व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस डिफरेंट पेरेंटिंग। So देखिए, ट्रेडिशनली वी टॉक अबाउट 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स, दैट इज अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, permissive and avoidant or negligent. So negligent means, as the name suggests, कि parent बिल्कुल involved नहीं है, चाइल्ड क्या कर रहा है, does not bothered. Second is permissive, as the name suggests, कि बहुत परमिशन दे रहे हैं, मतलब कि बाउंड्रीज नहीं रख रहे हैं, they are not able to say no to the child. टैंट्रम्स होते हैं तो टैंट्रम्स को देख के घबरा जाते हैं, they give in, कि चलो नहीं कोई नहीं बस करो, तो परमिशंस दे रहे हैं, they are not able to put boundaries. Third is authoritarian. Authoritarian means too many boundaries, too many rules. जितने नहीं होने चाहिए उतने रूल्स, that's not giving child space to express creatively or to make mistakes. और जैसे आपने एक एग्जांपल अभी दिया था कि द चाइल्ड, वो छोटी डॉटर थी, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई, तो वो अथॉरिटेरियन टाइप लग रहा था। सबमिसिव हो जाते हैं जहाँ पे बच्चे या तो सबमिसिव हो जाएंगे, एक पॉइंट के बाद रिबेल कर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, चिल्ड्रन आर ग्रोइंग। तो जो भी आप अथॉरिटेरियन, अगर आपको लगता है आपका वर्क भी कर रहा है, थप्पड़ लगा के भी आप कर पा रहे, गुस्सा करके आप अपने बच्चे को चला पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरी सारी बात सुनता है बिकॉज मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, रिमेंबर दैट ईदर वो सबमिसिव हो रहे हैं और दे विल डिसाइड वन डे कि नो मैटर हाउ मच यू गेट एंग्री, आई विल स्टिल नॉट लिसन टू यू। एंड वो कहीं ना कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। वो अभी तो सबमिसिव हैं और आगे चल के जब रिबेल करेंगे तो वो डिसरिस्पेक्ट ही है आपकी। और डिसरिस्पेक्ट कहाँ से आई है? फर्स्ट हमने दी कहीं ना बच्चे को, तो वो रिटर्न होके आ रही है हमारे पास। तो अथॉरिटेरियन भी एक तरह से वी डू नॉट रेकमेंड, ऑफ कोर्स। अथॉरिटेटिव is the more balanced approach, collaborative approach, where we try say that understand the child, collaboratively rules बनाए, regulations बनाए, that is authoritative. इसी को मोल्ड करके अब जेंटल की तरफ और क्लियरली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेंटल पेरेंटिंग का क्या मीनिंग है। अब जेंटल को परमिसिव के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, बट जेंटल पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाउंड्रीज का। सो वी आर सेइंग दैट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स मोर कॉन्शियस पेरेंटिंग. So conscious parenting is a mix of gentle parenting, which is, and your authoritative parenting. नहीं, conscious parenting means उठना, जागना। कोई बेहोश होता है, हम उसको कॉन्शियस स्टेट में लाने की ओके, जागरूक होना। सो हम कॉन्शियस पेरेंट्स ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स आर नॉट अवेक, दे आर पेरेंटिंग एंड दे आर जस्ट डूइंग whatever they have been conditioned in their brain with. जैसे मेरे पास कोई पेरेंट आता है, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा है और बिल्कुल उसका दिमाग नहीं चल रहा है पढ़ाई में, और जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, उनके बिहेवियर का क्या इफेक्ट आ रहा है। अ कॉन्शियस पेरेंट विल सी विद इन, विल अंडरस्टैंड हर सेल्फ और हिमसेल्फ, मेरे क्या ट्रिगर्स हैं, क्या मैं बच्चों का बिहेवियर पर्सनली ले रही हूँ, क्या मेरा वो पढ़ाई के साथ नेगेटिव एसोसिएशन है, इसलिए मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के साथ नेगेटिवली एसोसिएट कर रही हूँ और गुस्सा कर रही हूँ और हाइपर हो जाती हूँ। सो गोइंग विद इन एंड अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स इज द फर्स्ट and main highlight of conscious parents. Parents need to understand themselves first before, judging their child, or before conflicting with their child, or before making any boundaries or giving any permission. आपको पहले अपने आप को समझना चाहिए जो आप समझाना चाह रहे हो। Yes, हम ज़्यादातर पर्सनली बहुत लेते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। सो आई वॉज रेज्ड एज अ पीपल प्लीजर, क्लियरली। आज भी मेरे को याद है, मेरी स्लैम बुक मिली थी पुरानी, उसमें मैंने लिखा था, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? आई वांट टू प्लीज एवरीवन सो दैट एवरीवन इज हैप्पी विद मी। But you are not an ice cream, no? You can't please everyone. I think ice cream also cannot please everyone. No, sometimes yes. In this hot summer, I can say. But the thing is that when my son did not really want to please anyone,
He was confident. Even in online classes, I would sit with him during lockdown, and मैम सब लोग हाथ उठा के आंसर देते थे और मैं कहती थी तुम भी दो. Why are you not giving? But he was not interested. मैं और किसी को स्टार मिलता है मैं कहती थी आपको भी स्टार मिलेगा, आप भी देखो कितना हैप्पी होगे, देखो वो कितना हैप्पी है, उसको स्टार. मैं यही नहीं समझ पा रही कि मेरा बच्चा तो अभी हैप्पी है, मैं कौन से स्टार के साथ कनेक्ट कर रही हूँ उसकी हैप्पीनेस. And as a conscious parent, I could understand that because it took me that, because I was raised as a people pleaser, because I believe that we need to please people to be happy within. That's why I was getting triggered when my son was not doing it. कुछ गलत तो नहीं कर रहा था ना. He was happy, उसको नहीं करना hand raise करके answer. So इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में with our children we are facing, and we don't even realize a lot of things are coming from within. Every parent has different triggers. कोई बोलेगा कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है तो ठीक है, बट यार ये जब बदतमीजी करता है ना या इस तरह से बिहेव करता है, ज्यादा रोता है तो मैं ट्रिगर हो जाती हूँ. कोई बोलेगा यार ठीक है रोना धोना तो बच्चे करते ही हैं, बट जब ये पढ़ता नहीं है ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. दो पेरेंट्स, दोनों के ट्रिगर्स कितने डिफरेंट है. एक को पढ़ाई से प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरे को है. क्यों है? तो ये हमारा इतना नेचर आ रहा है ना बीच में. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ रहा है. Self understanding is very important. Very, very important. And basically we'll start becoming calmer when we will understand and accept ourselves, Apurva. तो अपने आप को जज नहीं करना है कि यार मैं ऐसी हूँ, कि ये मेरे अंदर से आ रहा है. ये तो एम्पावरिंग है. अच्छा ये मेरे अंदर से आ रहा है तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ. इशिना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. अगर मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ केस. देयर इज अ मदर, उसका जो चाइल्डहुड रहा है वो बहुत स्ट्रगल बेस रहा हो. उसने फैमिली में बहुत सारे ऐसे कंडीशन देखी हों जहाँ पे उसको वो अपब्रिंगिंग नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, फाइनेंशियल ऑल्सो, और इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो. सो समटाइम्स आई फील कि देयर आर मदर who are not empowered enough to explain themselves. Like for an example, मेरी मदर को बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बट उन्होंने मुझे हमेशा से पुश किया कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ूँ, मेरा कम्युनिकेशन बेटर हो, मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाऊँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूँ. ये मदर और फादर का एस्पिरेशन होता है कि मेरा बच्चा जो मैंने नहीं किया वो अचीव करे. लेकिन जो आपने नहीं अचीव किया, जो आप नहीं कर पाए, वो एक तरीके का आप प्रेशर नहीं डाल रहे हो अपने बच्चे के ऊपर कि आप ये अचीव करो या आप ये चीज़ कंप्लीट करो. देखो, if you want your child, if for example your mom wanted you to study English and go ahead in life, अगर यहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अगर आप बोलते मैंने ये नहीं करना, इंग्लिश तो चलो एक सिंपल चीज है, आनी भी चाहिए, है ना. लेकिन कोई कहता है कि नहीं मैंने ये वाला एग्जाम नहीं पास किया, तुम करो. या मैं डॉक्टर नहीं बना, मैंने डॉक्टर बन पाई तो आप डॉक्टर बनो. अब यहाँ अगर बच्चा बनना चाहता है तो ठीक है बनाओ, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है. लेकिन अगर नहीं बनना चाहता है और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वहां पे गड़बड़ है. देन यू आर पुटिंग योर सेल्फ ऑन द चाइल्ड एंड दैट इज नॉट फेयर. सो ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी ऑल अंडरस्टैंड दैट हमने जो नहीं किया वो हमारे बच्चों से करवाना इट लुक्स ओनली, इट साउंड्स ओनली रॉन्ग. सो इशिना, मैं एक्चुअली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो जॉइंट फैमिली का सेटअप होता है जिसमें आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आपके साथ रहती है, फॉर एन एग्जाम्पल एज अ मदर आपने बिल्कुल एक बहुत ही आर्टिकुलेट वे में कॉन्शियस पेरेंटिंग अप्रोच को अडेप्ट किया और आपने एक लिमिटेड सेट बाउंड्रीज क्रिएट करी अपने बच्चे के लिए. इन दैट केस, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास बेबी है और उसको चिप्स चाहिए, बट आपने एक सेट इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है कि ये बाउंड्रीज हैं, इससे ज़्यादा मैं पर्टिकुलर आपको आगे जाने नहीं दे सकती, आपको चिप्स नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो ये चीज़ या ये एक्टिविटी करने के बाद मिलेगा, या आपने कल खाया था तो अब आपको 3 दिन बाद मिलेगा. बट इन अ जॉइंट फैमिली वेयर द बच्चा इज स्टेइंग विद ग्रैंड पेरेंट्स, दादी आई, उन्होंने किचन का ड्रॉर खोला और चिप्स निकाल के तुरंत दे दिया. तो उस टाइम पे जो कॉन्शियस पेरेंटिंग आप इतना अप्रोच सेटअप कर रहे थे उसका तो बिल्कुल धज्जियाँ ही उड़ गई. तब उस टाइम पे हम लोग एज अ पेरेंट क्या करें? लाइक शुड वी स्टॉप देम ब्लंटली? शुड वी टेल देम कि आप इंटरफेयर मत करो मेरी अपब्रिंगिंग में, या आप मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहे हो? उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? देखो, एग्जैक्टली इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो ये होएगा
कि क्योंकि दादी ने चिप्स दे दिए और बच्चे को चिप्स बहुत पसंद है और अब बच्चे के हाथ में चले गए और अब ये चिप्स को उसके पेट में जाने से कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल, तो काम तो हो चुका है। तो आप बुरे मत बनिए। अच्छा, तो आप बोलिए चलो मिल गए चिप्स, अब मेरे को भी खाने हैं आपके साथ यार। अब कि अरे वाह आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो दादी ने दे दिए, पता मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था ना करके, चलो आज खा लो। ये सिर्फ कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं, स्मार्ट पेरेंटिंग भी है। रीजन ये है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली there are some things that we are going to control and some things that will not be in our control. We need to identify what we control and work on that instead of stressing out on what we don't control, because then we are not going to control anything. So understand आप किस तरह से पेरेंट से बात कर सकते हो। उसी टाइम अगर आपने बोला मेरे पेरेंटिंग में आप मत इंटरफेयर कीजिए, तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा इसके आगे? Now you will not be in the same team. नाउ यू आर इन डिफरेंट टीम्स। अब ये चलता रहेगा, दादी ने ये दे देती है, दादी वो दे देती है, इसकी मम्मी इसको कुछ देती नहीं है, पता नहीं क्यों इतना वो करके रखा है, हम भी तो चिप्स खा के बड़े हुए हैं। अब यही सिचुएशन बढ़ती जाएगी एंड द होल सिनेरियो ऑफ द हाउस इज गोइंग टू गेट नेगेटिव, ईदर अपवर्ड, सब एक दूसरे से करेंगे या अंदर ही अंदर होगा। नीदर वे इट इज गुड फॉर द चाइल्ड। आई अंडरस्टैंड। आप मतलब डेफिनेटली हम बच्चों की मोस्ट ऑफ द टाइम्स बात नहीं मानते एंड बहुत ही लिमिटेड टाइम पे वो लोग क्रैंकी होते हैं या टैंट्रम्स दिखाते हैं या एल्डर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। बट मैंने ये भी नोटिस किया है कि एल्डर पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, उनके सपोर्ट से बच्चा बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है। लाइक आई अंडरस्टैंड उस केस में लाइक व्हेन ही स्टार्ट और व्हेन शी स्टार्ट रिप्लाइंग बैक टू पेरेंट्स, लाइक दादी तो दे देती थी, दादी तो मुझे ये करने देती थी, एंड उनका जो एक स्पीच होता है, जो टोन होता है, वो बहुत ही लाइक आई वुड से नॉट इन अ वेरी रिस्पेक्टेड फॉर्म टूवर्ड्स द पेरेंट्स होता है। एंड ये बहुत घरों की कहानी है, आई हैव सीन इट, लाइक क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनका गो अहेड होता है, उनका सपोर्ट होता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उनके शय में या उनके एक तरीके से क्योंकि वो दादा दादी के इकलौते बच्चे हैं, तो उनके शय में ही वो अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, पेरेंट के साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो वो एक ऑल्सो अ सिनेरियो जहाँ पे पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे। आपकी क्वेश्चन बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिसमें मैं जा रही थी एंड इट्स एक्चुअली हेल्पिंग मी, क्योंकि डोंट अंडर एस्टिमेट योर कनेक्शन विद योर चाइल्ड। ये जो सारा सिचुएशन है ना, ये जो मैंने आपको फर्स्ट चीज बोली थी ना, पॉइंट दैट आप बुरे मत बनिए। जब वो पेट में जा रहा है चिप्स, आपका अब ना करने से कोई फायदा है, अब दादी को सामने कुछ बोलने से कोई फायदा है? कोई फायदा हो रहा है? अब बच्चे के पेट में चला गया। सो व्हेन वी आर नॉट बिकमिंग द बैड गाय, दैट इज द टाइम व्हेन वी आर लेइंग द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट चिप्स का पैकेट। क्योंकि हम अगला देख सकते हैं। अगर हम अभी बुरे बन गए तो अगली बार बच्चा बोलेगा दादी तो दे देती। तो हम अगली बार जब बच्चा मांगेगा तो तब हम बोल सकते हैं कि आपने खाया था ना लास्ट टाइम, कितना यम्मी था ना। हम कनेक्ट कर रहे हैं। बट बेटा आज नहीं, अब हम सैटरडे को खाएंगे और पक्का खाएंगे, ये डिसाइड करते कौन सा खाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ कनेक्शन हेल्प्स इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस बिहेवियर। जॉइंट फैमिली में आपको कनेक्शन ही सेव कर सकता है अपने बच्चे के साथ। एंड कनेक्शन के ऊपर तो पूरा एक मतलब वर्कशॉप होता है हमारा 2 आवर्स का, क्योंकि कनेक्शन से आपके बच्चे आपकी बात ज़्यादा सुनेगा। आपके वो जो भी डिसीजन लेंगे, खाना है नहीं खाना है, वो आपके हिसाब से होने लग जाएगा जैसे जैसे आपका कनेक्शन बढ़ेगा। तो कनेक्शन का मतलब होता है कि आप बच्चे से बात कैसे करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट कितनी देते हैं, आप बाउंड्री लगाते कैसे हैं, जब वो टैंट्रम थ्रो करते हैं आप तब क्या बिहेव करते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं कि आप उनको समझते हैं, आप पूरे दिन में उनको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, अब ये नहीं करो, अब सोने चलो, अब ये क्या कर रहे हो, अब पढ़ने का टाइम है, कि आप उनसे कनेक्ट भी करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, कि आते जाते उनको बोलते हैं अरे कितना अच्छा लग रहा है ना आपने जो बनाया है। आपका किस तरह का कम्युनिकेशन है? आप सिर्फ पेरेंटिंग कर रहे हैं कि कनेक्टिंग भी कर रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली वो ही हेल्प करेगा पेरेंटिंग में। सो मतलब एक कनेक्शन डेवलप करने के लिए आपको बच्चों की डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट लेना पड़ेगा। कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है पूर्वा किसी भी रिलेशनशिप का, बच्चों के लिए, बच्चों के साथ हो या किसी के भी साथ हो, कनेक्शन से ही इन्फ्लुएंस आता है।
मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी बुक में भी है ये एग्जांपल, कि आप कनेक्शन को एक हस्बैंड और वाइफ के उसमें ले जाइए। समझिए कि आपका हस्बैंड है, मॉर्निंग में निकल रहा है घर से, और जाने से पहले आप मे बी स्टे एट होम या वर्किंग मॉम है जो घर से ही वर्क कर रहे हैं, और जाने से पहले आपके हस्बैंड जाके आके बोलते हैं कि पूरा घर इस तरह से रखा हुआ है, ये कोई तरीका है? बच्चा भी आप देखो तो सही, बिल्कुल नहीं देख रहे हो, घर पे रहते हो, उतना तो टाइम होता है ना। कुछ कह के चले गए, मे बी आपने भी जवाब दे दिया कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, कुछ टिफ हुई और वो चले गए। बाय इवनिंग फ्रेंड वो हस्बैंड का फ़ोन आता है आपको कि यार मैं ना आ रहा हूँ, मेरे 2 कलीग्स ने कह दिया है वो आ रहे हैं मेरे साथ, थोड़ी तैयारी कर दो जल्दी से, मैं बस आ रहा हूँ लेके। आपका मन करेगा? डेफिनेटली नॉट। अच्छा, अब यही सिचुएशन को हम चेंज करते हैं। सुबह हस्बैंड जा रहे हैं, जाने से पहले आपको आके बोलते हैं कि यार हाउ आर यू मैनेजिंग, बच्चे काम दोनों कैसे कर रही है? मतलब समटाइम्स आई फील यू आर डूइंग अ लॉट, और समथिंग पॉजिटिव दे से टू यू बिफोर लीविंग। एंड नाउ दे लीव एंड दे कॉल यू इन द इवनिंग एंड से यार मेरे ना 2 फ्रेंड्स आ रहे हैं, कि थोड़ी तैयारी कर दोगे? अब मन करेगा? Of course, like there is a support. I will feel like, my husband is so supportive. He understands how difficult things are. अब इसको ले जाओ, माई पेरेंट इज सो सपोर्टिव, माई पेरेंट अंडरस्टैंड्स हाउ आई एम फीलिंग, माई पेरेंट वैलिडेट्स, माई पेरेंट ट्राइज टू गिव मी परमिशन वेयर, मतलब आप खुद देखो कि आपके छोटे से कनेक्शन से हस्बैंड के साथ उनका इन्फ्लुएंस आप पे बढ़ गया। इन्फ्लुएंस मतलब आप हाँ कर रहे हैं, आप मान रहे हैं उनकी बात। लेट्स टेक इट टू नाउ पेरेंट चाइल्ड। When children feel good about the relationship that they share with us, that's when children will say more yes to us and listen to us more. So whenever a parent comes to me कि मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं एकदम से उनको बोल नहीं सकती, पर मुझे पता है कि यहाँ डिस्कनेक्शन है। कनेक्शन बनाना है is a key. Is the base. Is the base. Very well said. आई अंडरस्टैंड, कनेक्शन बना लिया, सब कुछ कर लिया, बच्चा सब बच्चे बच्चे होते हैं। आप मुझे उस सिचुएशन के बारे में शिना एक्सप्लेन करो जहाँ पे बच्चा नॉन स्टॉप आपसे आर्ग्यू करता है, नॉन स्टॉप आपसे डिसरिस्पेक्ट करके आपसे बात करता है। आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी, इंग्लिश जिसमें श्रीदेवी को इंग्लिश बोलने नहीं आती, एंड उनकी जो बेटी होती है वो कॉन्स्टेंटली उसको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है, एंड वो सप्रेस करती है फीलिंग श्रीदेवी अपनी कि शी इज़ माई डॉटर बट शी इज स्टिल नॉट रिस्पेक्टिंग मी, unless because I couldn't speak English, because I can't go to her school and speak to father. So ये genuine एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और ऐसे बहुत सी फैमिलीज में मदर हो या फादर हो, बच्चे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को। उस टाइम पे पेरेंट कैसे उनको हेल्प करे या उनको बोले कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग? जब बच्चे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो श्रीदेवी की जो आपने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया अपने लिए। और कहीं ना कहीं आप देखो, दो इट्स अ मूवी, बट बिकॉज शी वॉज अंडर कॉन्फिडेंट हर सेल्फ, बिकॉज शी वॉज नॉट able to love herself, so this is how it is, when you don't love yourself, others, it's very difficult to find love outside. Or when you don't respect yourself, that's when you attract disrespect from people. So this is how universe also works. So that being said, but if your child is being disrespectful, it is important that you take a stand in the sense that beta, this is not right. But then instead of disrespecting in return or arguing in return while putting the boundary, you can say something like, beta, the way you're talking, something seems to be off. Are you okay? क्या हुआ है बेटा? Do you need some time? It seems that you're bothered. कुछ स्कूल में चल रहा है? मैं क्या कर रही हूँ अभी? I am getting curious instead of getting angry. You really want to find out what exactly is happening with her. सिर्फ बच्चों में ही नहीं, ये ह्यूमन बिहेवियर है, that whatever we are feeling, it's what is guiding our behavior. So if you're being rude to someone, it's because you're feeling something. You're not enjoying that being rude, or even when you're getting angry with someone, you're not enjoying it. You're feeling frustrated, disappointed, upset, misunderstood, disconnected. Actually हम पेरेंट्स को अथॉरिटी बोलते हैं ना, वी आर द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी कैसे अथॉरिटी लगती है? आप मुझे बताइए, एक पेरेंट जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्या कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, मैं थक गई हूँ तुम्हारी इन सारी बातों से, ये आपको अथॉरिटी लग रही है? नहीं। और
जो अभी हम कर रहे हैं कि बेटा ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं खा सकते, इसलिए मैं आपको आज ये नहीं अलाउ कर पाऊंगी। आई नो आपको बुरा लग रहा है, आप रो सकते हो, आपको मेरे पास आके रोना, नहीं रोना अच्छा, लेकिन ये अथॉरिटी है। अथॉरिटी इज फर्म, नॉट एंग्री। एंग्री इज आउट ऑफ कंट्रोल एडल्ट विद एन आउट ऑफ कंट्रोल चाइल्ड। हम एंगर की अगर बात करें, जैसे आपने बहुत क्लियरली और बहुत स्पेसिफिकली समझाया कि अथॉरिटी इज अ डिफरेंट अप्रोच एंड एंगर इज अ डिफरेंट अप्रोच। बहुत फैमिलीज में लाइक यू नो वी हैव सीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो बिल्कुल ही मारते पीटते हैं, स्लैप करते हैं या जो भी करते हैं, बट स्टिल एक फियर बेस्ड पेरेंटिंग टाइप की भी चीज़ है जहाँ पे आप अपने बच्चे को, आई हैव सीन मोस्टली इसमें मेल पेरेंट का रोल ज़्यादा होता है कि पापा से यूजुअली लोग डरते हैं, पापा आ जाएंगे, पापा के आते ही पढ़ने बैठ जाएंगे और पापा स्लैप भी कर देंगे, सबको डर लगता है। तो वो नोशन बच्चे के अंदर जब आ जाता है, इज दैट अ राइट अप्रोच, फियर बेस्ड पेरेंटिंग? फियर बेस्ड पेरेंटिंग या जो डांट लगा के या पापा का डर डाल के ये जो हम करते हैं ना, ये पता है क्यों इतना सक्सेसफुल लगता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में काम करता है। इट सीम्स टू बी वर्किंग। देखो पापा से डर के बैठ गया ना, हाँ, नहीं तो मैं बिठा ही नहीं सकती थी। अब यहाँ देखना है कि हमारा गोल क्या है एज अ पेरेंट। हम क्यों पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, कि वो इंटरेस्ट ले पढ़ाई में। सो पॉइंट ओवर हियर इज दैट शॉर्ट टर्म गोल्स को जब हम देखते हैं तो हमें फियर बेस्ड पेरेंटिंग काम करती लग रही है, लेकिन एज आई सेड इन द लॉन्ग रन आपके जो मेजर गोल्स है, दैट माई चाइल्ड शुड बी रिस्पॉन्सिबल, दैट माई चाइल्ड शुड बी हैप्पी, सक्सेसफुल, यहाँ तक आप पहुंच रहे हो। एक फियर बेस्ड पेरेंटिंग में एक बच्चे के अंदर इतना इनर चाइल्ड रह जाएगा कि शायद वो कल को पब्लिक स्पीकिंग में फेयर ही फील करेंगे, या कहीं पे जाएंगे तो अथॉरिटी से इतना फियर फील करेंगे कि आगे खुल ही नहीं पाएंगे, क्रिएटिविटी नहीं निकाल पाएंगे अपनी। कहीं ना कहीं वो आ जाता है। आप जितना दबाओगे, बच्चा अंदर अपने आप को दबा रहा है जब आप ऊपर से दबा रहे हो, वो सप्रेसिव हो जाएगा, या फिर फियर बेस्ड पेरेंटिंग एक पॉइंट के बाद काम नहीं करेगी। सो मेनी टाइम्स parents of teenagers come to me and they complain about how the child is not listening, but actually what is happening is whatever strategies they were using till now to make the child obey or listen, that has now expired. Now the child has found a voice, और आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते उस तरह से। तो जो आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव है भी, क्योंकि वो आपको बैकफायर कर देगी, फिर आप लॉस्ट हो जाओगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बच्चा 5-6 साल का गुस्से से सुन रहा है, 15 साल पे बोले कर लो गुस्सा, नहीं करूंगा, कर लो आज जो करना है कर लो, और पेरेंट कहेगा ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, कुछ भी नहीं हुआ, आज वो आपको बैकफायर कर गया है। और ये आता ही है पॉइंट कभी ना कभी व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग टू से जो करना है कर लो, मैं फिर भी नहीं सुनूंगा। आई हैव अ ग्रेट क्वेश्चन ओवर हेयर विद डिसिप्लिन। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि बच्चों के अंदर एक सिंसियर डिसिप्लिन कैसे मतलब एडवोकेट किया जाए या उनको कैसे सिखाया जाए। बट मुझे आपसे ये जानना है कि एक सही डिसिप्लिन सिखाने के लिए मुझे लगता है पेरेंट्स को भी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। if you can enlighten this, if you can highlight कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे मेरा एक एग्जाम्पल था कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा फ़ोन यूज़ ना करे, तो आपको भी फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए उसके सामने। आई थिंक आई एम राइट ओवर हियर। सो राइट वे ऑफ यू नो क्रिएटिंग दैट डिसिप्लिन, और एक बहुत राइट सिनर्जी में उनको एक डिसिप्लिन चाइल्ड बनाना, आपके अकॉर्डिंगली क्या क्या हमें करना चाहिए? देखो वो बोलते हैं ना, चिल्ड्रन आर वॉचिंग अस, दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम व्हाट वी आर टेलिंग देम, बट दे आर लर्निंग फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग अराउंड देम। दे आर वॉचिंग अस, सो दे आर वॉचिंग व्हाट वी आर डूइंग। फोन मत यूज करो, पर आपके पास है पूरा टाइम, तो फिर वो देखेंगे। सो इफ यू वांट देम टू रेगुलेट स्क्रीन टाइम, लेट्स शो मोर हेल्थी हैबिट्स अराउंड स्क्रीन्स योरसेल्फ। सिमिलरली फूड हैबिट्स, तो एक राइट अप्रोच देनी, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। उसके अलावा अगर हम डिसिप्लिन में जाएं तो वील ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट चिल्ड्रन आर गोइंग टू आस्क फॉर थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर देम, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन्स, फॉर एग्जाम्पल फूड। तो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा पार्ट है नो करना, पर गुस्सा करके नो करने की जरूरत है क्या? चिप्स का पैकेट नहीं देना, अब उसमें गुस्सा करने की जरूरत है, मत दो। अब लॉजिकली एक्सप्लेन करो। नहीं सुनेंगे वो लॉजिक,
ओके जब हमारे बच्चों का टैंट्रम हो रहा होता है ना, मुझे चाहिए चिप्स का पैकेट, नहीं चाहिए, और वो रो रहे हैं, लॉजिक तो यूज ही नहीं कर सकते आप तब, क्योंकि लॉजिक उनको समझ ही नहीं आएगा. उनका इमोशनल ब्रेन इतना ज्यादा हाइटेंड हुआ है कि फर्स्ट दे आर गोइंग टू काम डाउन, देन यू कैन यूज लॉजिक. सो इन दैट मोमेंट दे ओनली नीड एम्पैथी, कनेक्शन, योर काम. आप जितना कंपोज्ड रहोगे आप उतना बेटर हैंडल कर पाओगे. एग्जैक्टली. एंड काम मतलब चुप रहना नहीं, काम मतलब अंदर से काम रहना. पेशेंस दिखाओ, आप मत टैंट्रम, आपका टैंट्रम नहीं आना चाहिए. एडल्ट टैंट्रम्स को रोको. हाँ. बच्चा रो रहा है, उसको चिप्स नहीं मिल रहे, उसको रोने का हक है कि नहीं है. If your child is allowed to feel feelings in your house, you are doing a lot for your child. Allow feelings in your house. ठीक है, आप रोना आ रहा है, आपको चिप्स खाने थे, ठीक है, रो लो, ओके ओके, मिल जाएंगे, थोड़े दिन बाद हम खाएंगे, आज नहीं खा सकते, जो भी रीजन है. बार बार रिपीट मत करो, बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस मत दो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा उनको, उनके पास रहो और कामली लेट द टैंट्रम पास. ये एक डिसिप्लिन का बहुत बड़ा पार्ट है. डिसिप्लिन ये नहीं है कि हम बच्चों को बोले ये नहीं करना, बच्चे बोले ओके, ये नहीं करना ओके, ये करना ओके. ये डिसिप्लिन नहीं है. Discipline is that even when the child is not listening to us, how we react and respond to that. Second important part of discipline is to make it realistic. हम कितना डिसिप्लिन कर रहे हैं बच्चों को. जैसे हम कहते हैं कि मेरा 12-year-old is arguing with me. अगर आपको लगता है आप डिसिप्लिन नहीं कर रहे हो इसलिए वो आर्ग्यू कर रहे हैं, देन समवेयर आप अपने आप को डाउट कर रहे हो. चिल्ड्रन आर गोइंग have some age typical behaviors that they are going to display. A 4-year-old is going to run in the room, especially if they have a lot of energy. Don't even compare them with other 4-year-olds. Maybe they do not have as much energy. My 7-year-old still cannot sit at one place after a point. उसको थोड़ा थोड़ा घूमना है, उसमें एनर्जी है. तो वो मेरी डिसिप्लिन के कारण, तो मैं उसको क्या डिसिप्लिन कर रही हूँ कि एक जगह बैठ जाओ. That's not realistic. Realistic discipline is when you understand your child, you understand their temperament, their capabilities which are unique to them, you understand their age and what they can do at this age, and have discipline accordingly, so that discipline does not feel suffocating. And when it's realistic, children follow it. It's when it's unrealistic, children rebel. So that's a very important part of discipline. आप जब कोई चिल्ड्रन रेबल करता है, या हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, बट आप ये सोचो कि वो बिल्कुल नेगेटिव स्टैंड पे है, और आफ्टर ऑल द अप्रोचेस चिल्ड्रन और चाइल्ड हैज़ बिकम अ रेबल नाउ, और उसकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, ही इज़ अगेन 9 or 10 years old. बट उस पॉइंट पे जब वो रेबल कर रहा है, अगेन आप डेफिनेटली ये बोलोगे कि पूरा कॉन्शियस पेरेंटिंग, आप अपना काम मत खो, बट most of the parents, they lose their calm, they lose their patience, or they started seeking outside help, or they become confused. Parents actually become confused कि इतना छोटा सा बच्चा इस टाइम पे रेबल कर रहा है मेरे साथ, मतलब बड़ा होगा तो और क्या ही करेगा. उस टाइम पे पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए, उस टाइम पे पेरेंट्स को कैसे अडेप्ट करना चाहिए इस सिचुएशन को? I'll first take that, but parents lose their calm. तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, that when I talk about being calm does not mean that I am thinking that a parent who's conscious is always calm with the child, और बड़ा calm approach से चल रहा है पूरा घर, ऐसा कुछ नहीं. हाँ, वो गौतम बुद्धा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते. और हमारे इमोशंस को भी हमें फील करना बहुत ज़रूरी है. सो हमें भी अपने आप को सप्रेस नहीं करना है. सो इवन इफ़ यू डू लूज योर काम, इवन इफ़ यू एट टाइम्स मेक अ मिस्टेक एंड यू फील यार मैं इससे बेटर रिएक्ट कर सकती थी, बट इफ़ यू कैन सी योर सेल्फ, यू आर अ कॉन्शियस पेरेंट कि यार हो गया, इट्स ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक दैट मिस्टेक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी अ कामर पेरेंट, क्योंकि अगर आप यही सोचोगे हाँ मैं तो काम ही नहीं रह पाई, मुझसे तो ये गलती हो गई, और आप इसी को अपने अंदर करते रहोगे तो आप काम हो भी नहीं पाओगे आगे, बिकॉज यू आर सो गिल्टी. So I just want to tell everyone that it is okay to lose your calm. It is okay to make those mistakes, or because in that moment that was so triggering for you. It is okay. Important is that you, whenever you feel better, you get up, you bounce back, and you keep working on yourself. That's what we call growing. You think I never lose my calm with my children? आप करते होगे? बिल्कुल हो जाता है. Even when I know better, I am not able to do better at times. I succumb. अभी I have an 8-month-old. So many things have happened. I went through postpartum. I went through so many things. सब कुछ जानते हुए भी कभी-कभी I was not able to behave the way I wanted to. But it is so important for us to be kind to ourselves.
Mostly parents are hard on their children. They are not kind sometimes because sometimes they are very hard on themselves, Apurva. I don't know if everyone will understand this, but if you'll get inside your head, you will see it. If you want your child always to behave well, you're also putting that thing on yourself. If you don't want your child ever to make a mistake, you're also putting that on yourself. Let's allow each other to make mistakes. We are not having any perfect relationship. We are working on a real relationship which is mutual. That's why we call connection. अगर आपका बच्चा रिबेल कर रहा है तो फिर से मैं उसी पॉइंट पे आऊंगी, कहाँ से आ रहा है वो बिहेवियर? वो जो भी बिहेव कर रहा है उसके नीचे कुछ है. मे बी द चाइल्ड अगेन इज फीलिंग too suffocated with the boundary. Maybe the child is going through something. आजकल बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनकी रिलेशनशिप्स में कुछ हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता है. हमको लगता है इस तरह से देखो कमरे में चला जाता है, हाय भी नहीं बोलता, बस अब कमरे में जाएगा, अपना आईपॉड लगाएगा और फोन पे बैठ जाएगा. हमें ये भी नहीं पता what they are going through. We are just judging their actions. So even if your child is rebelling or you're not liking what your child is doing, please get curious instead of getting furious. It's a very beautiful line, and follow it. You will be more empowered with your child, and your child will feel more understood. You mentioned please be curious instead of being furious. Wonderful line. Yeah, it's not mine. Okay. So Ishna, I totally get it. कहीं ना कहीं बच्चों को समझने के लिए हमें खुद समझना है, और बच्चों को समझने के लिए हमें उनका बिहेवियर, उनके पैटर्न्स, उनके हिडन थिंग्स हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और मैंने देखा भी है लाइक पेरेंट्स को आजकल कॉन्शियस पेरेंटिंग अप्रोच करते हुए, सीखते हुए, जेंटल पेरेंटिंग को अप्रोच करते हुए. एंड वी आर सो ग्लैड कि आपके जैसे लोग हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक एजुकेशनल लर्निंग दे सकते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को इफ़ेक्टिवली एंड पॉजिटिवली रेज किया जाए. सो आजकल बहुत सारे ये चैनल्स आर अवेलेबल ओवर हेयर, एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स, जैसे आप ही वर्कशॉप्स देते हो, तो हेल्प तो हमें बहुत मिलती है. बट स्टिल कहीं ना कहीं पेरेंट्स स्ट्रगल करता है. लाइक अगर माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली कम्स फ्रॉम हेयर, हम कभी कभी अपने बच्चे को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते. आज के टाइम पे इट्स जस्ट नॉट ओनली मदर हु टेक्स केयर ऑफ अ चाइल्ड, इट्स अ parenting style, positive parenting style, not only with mother but also with the father. And we do not know the right way of communication, and we do not know a efficient way of communicating with a child. आप communication पे हम लोग को कैसे वर्क करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ एक बेटर कॉन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन कैसे की जाए? कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी बिल्कुल क्रिस्प. द फर्स्ट थिंग इज एक्टिव लिसनिंग, क्यूरियस लिसनिंग. अगर आपके बच्चे आके आपको कोई भी स्कूल से आते हैं या कहीं से भी अगर आपको कोई बात बता रहे हैं, इट माइट नॉट बी एज इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट प्लीज टेक इंटरेस्ट, बिकॉज टुडे दे आर टॉकिंग. समटाइम्स पेरेंट्स से मेरा 4 years का बच्चा बहुत बोलता है, मैं कहती हूँ आगे जाके नहीं बोलेंगे, सुन लो, अगर सुन लिया तो बोलेंगे, बिकॉज अदरवाइज राइट नाउ दे आर ओपनिंग अप. अलाउ दैट ओपनिंग, talk to them, communicate, listen. Then while you're listening, please do not start explaining or teaching something. As parents हमें हमेशा लगता है कि बच्चों को कुछ समझाना चाहिए. मुझे ये मौका मिला है, मेरे फ्रेंड ने आज मैम की बात ही नहीं सुनी, पता है वो ऐसे करी जा रहा था और मैम की बात ही नहीं सुनी. हम बोलेंगे मैम की बात तो सुननी चाहिए, ये तो गलत बात थी. अब हम उसको लगता है हम यहाँ पे भी समझा लें. अगर हम हर बात पे बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे हमसे ओपन नहीं करेंगे. सो व्हाट टू डू? टेक इंटरेस्ट. सच्ची कौन सा बच्चा नहीं सुन रहा था, फिर मैम ने क्या किया ऐसे, ओ माय गॉड. सो वी आर लिटरली लिसनिंग, वी आर टेकिंग इंटरेस्ट. टॉक टू योर चिल्ड्रन इन दैट वे. एंड इफ यू वांट योर चाइल्ड, इफ यू वांट टू टेल योर चाइल्ड टू डू समथिंग, या यू वांट टू इंस्ट्रक्ट योर चाइल्ड टू डू समथिंग, मैं तब भी कहूंगी 1 way कम्युनिकेशन की जगह 2 way कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए. कन्वर्सेशन 2 way होती है, आप इंस्ट्रक्ट 1 way करते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, आज जाना है क्लास, मन नहीं कर रहा, सच्ची आया है पर जाना तो पड़ता है बेटा. हमने 2 way कम्युनिकेशन किया. इन एनी सिचुएशन प्लीज आस्क मोर, टेल लेस. नहीं तो पता है क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं मैं इतना समझाता हूँ मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा सुन ही नहीं रहा है. That whatever you are saying is not reaching the child. It's 1 way. बेटा मैं आपको कह रही हूँ ना, पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर आप नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, फिर मैम ऐसे करेगी, आपको रियलाइज होगा आपका बच्चा लॉस्ट हो चुका है. आपने 6th line तक तो you are not even, you don't even think your child is listening to you. It's 1 way. So instead just say पढ़ने का मन नहीं कर रहा,
फिर क्या करेगा आगे, फिर क्या करने का मन है, फिर आप बात करते करते शायद उससे कनेक्ट कर जाओगे. द मिनट यू विल कनेक्ट, एज आई सेड बिफोर, यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस. द मिनट योर चाइल्ड विल फील अंडरस्टूड विद यू, they will start listening to you. So two-way communication, ask more. For example, मुझे लोग कहते हैं कि हम बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं, इतना समझाते हैं कि बेटा जाना स्कूल में, फिर रोना नहीं, ठीक है, आज नहीं रोगे ना, मैम वो लेने आएगी तो ऐसे करोगे. और मोस्टली दे आर जस्ट स्पीकिंग, ठीक है, आज नहीं रोना. इंस्टेड मैं कहूँगी कार में बैठो और पूछो और आज क्या प्लान है. डायलॉग नहीं हो रहा है, सिर्फ मोनोलॉग चल रहा है. बोला आज क्या प्लान है, आज रोना है. फिर मैम लेने आओगी तो रो लेना, नहीं भी रो सकते, सोचो. सो वी आर एंड हमारी बॉडी लैंग्वेज. अच्छा, अब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें कितना बड़ा रोल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. आपके एक्सप्रेशंस, आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज. सो व्हेन आई से आज क्या प्लान है, माय बॉडी इज काम, आई एम नॉट एंग्शियस, फिर मैं बोलूंगी आज रोना नहीं बेटा, माय होल एक्सप्रेशन, टोन, एवरीथिंग इज गिवन अवे दैट आई एम एंग्शियस. Children listen to us more when we are calm, and if you want to discipline, when we are firm. ये नहीं कर सकते बेटा. तो my elder one will pick सिराज और मेरे बेटे को उठा लेगा और मैं कहूँगी ये, तो मैं बोलूँगी सवीर ऐसे नहीं करो बेटा, कोई असर नहीं है. मैं कहूँगी बेटा ये नहीं कर सकते, you need my help, मैं आपको हेल्प करूँगी, इसको उतार दो. ये दोनों करती हूँ मैं, पर सेकंड वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है. व्हाट आई एम सेइंग, राइट एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. नो, इट्स वंडरफुल. लाइक यू नो, आप जिस तरह से अपने, एक्चुअली इट्स अ डायलॉग एज आई मेंशन, कि आप टू वे कम्युनिकेशन करो और आप बच्चे को भी एक मौका दो बात करने का, आपसे रिप्लाई करने का, तो वो कॉन्वर्सेशन अच्छा बनता है और बच्चे ज़्यादा सुनते हैं. वेल एग्रीड. सो कम्युनिकेशन का आपने मुझसे बात किया. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हम बच्चों को कैसे इनकरेज करें. ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, बट मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहती हूँ कि बच्चे को कैसे इनकरेज करें उसके ड्रीम्स और उसके पैशन को परस्यू कराने के लिए. लाइक समटाइम्स इट हैपन्स कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनका इंटरेस्ट कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स ख़त्म होने लगता है, एंड अपनी खुद की एक शेल, अपना खुद का एक वो जोन क्रिएट कर लेते हैं. तो उस टाइम पे हम बच्चों को कैसे इंकरेज कर सकते हैं? हाउ वी कैन इंकरेज देम, लाइक यू नो, टू फॉलो देयर पैशन, टू परस्यू देयर ड्रीम्स. देखो, फर्स्ट थिंग इज टू नॉट पुश टू मच, बिकॉज द मिनट यू विल बी टू पुशी, दे विल रिबेल एंड जस्ट नॉट वांट टू डू इट. तो वो उल्टा चला जाएगा, बिकॉज वो बड़े हो गए हैं. लाइक यू सेड, वो अपने शेल में. इन अ वे बड़े होना, ग्रो होना, पेरेंट्स से डिटैच होना, फ्रेंड्स से अटैच होना, ऑल दिस इज वेरी रिक्वायर्ड एट द स्टेज ऑफ टीनेजर्स, क्योंकि उन्होंने निकल जाना है अब घर से. अगर वो घर से बाहर अपनी प्रायोरिटी सेट करना शुरू नहीं करेंगे तो हाउ विल दीज बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स? दे नीड दैट. सो इट्स पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट अगेन. But of course we are still the parents, we need to discipline them and we need to help them be successful. So the second thing that I will say is, please make sure that whatever you are encouraging them for, they are actually interested in that. कि आप सोचते हो उसको पायलट बनना है, लेकिन एक्चुअली तो वो ब्लॉगर बनना चाहते हैं. तो आप क्लैरिटी है ना आपको वो क्या चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ओपन कम्युनिकेशन रखो, यू विल गेट टू नो, एंड ओपन हेड रखो सो दैट यू कैन एक्सेप्ट दैट. देन दे विल, क्योंकि आज ब्लॉगिंग में भी उतना ही बच्चा आगे जा सकता है. रिमेंबर दैट, शायद ज़्यादा ही आजकल जा रहे हैं. हाँ. और थर्ड चीज़ ये है दैट उनके लाइफ में उनका पैशन और इंटरेस्ट है, बट याद रखिए और भी बहुत कुछ है. सो इफ समटाइम्स दे आर टेकिंग अ बैक सीट बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट द रिलेशनशिप दे आर इन विद देयर फ्रेंड्स, तो बीच में हमको लगेगा कि यार देखो ये अपना पैशन भूल गया इन सब चीज़ों में. ये सब इतना ज़्यादा इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसके फ्रेंड सर्कल का प्रॉब्लम और सब कुछ, कि अपना पैशन भूल गया. ये वो भी क्लासेस भी नहीं जा रहा. अब अगर आप चाहते हैं ये वहाँ जाए तो प्लीज़ उसको पहले समझिए वो कहाँ पे है. सो इंस्टेड ऑफ जजिंग कि बेटा ये सब तो बाद में करना, ये सब बाद में करने की चीज़ें, आज अपना करियर बनाओ, आज अपना वो ये सब करो, ये बातें उनको नहीं समझ आएंगी. आप डिस्कनेक्ट कर गए हैं. आप उनके साथ बैठ के ये पूछिए और छोड़ दीजिए करियर. आप इन्फ्लुएंस बढ़ाइए, कनेक्शन से बढ़ेगा. इन्फ्लुएंस मतलब क्या? वो आपकी बात मानेंगे. वो गोल है ना हमारा, वो कनेक्शन से मिलेगा. तो आप बैठिए और पूछिए क्या चल रहा बेटा, या
बातों बातों में, ये भी शायद उनको इंटिमिडेट कर जाता है बड़े बच्चों को। तो बेसिकली कुछ जो वो कर रहे हैं उससे कनेक्ट करते हुए पूछिए, और आजकल स्कूल में क्या चल रहा है, डोंट टॉक अबाउट द हॉबी, डोंट टॉक अबाउट दैट पैशन, फर्स्ट कनेक्ट, अंडरस्टैंड देम, मे बी दे विल ओपन अप, मे बी इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर यू व्हाट दे विल से, बहुत कुछ चल रहा होता है इनके यहाँ। लिसन, बी क्यूरियस, अंडरस्टैंड, and then when you will connect enough you will see that you will be able to then say कि बेटा फिर क्या करना आजकल टेनिस का, मैं सोच रहा था कि तेरा मन खराब है आज नहीं जाना, मन नहीं कर रहा, बिल्कुल हिम्मत कर सकता है, मैं चलूं, आधे घंटे के लिए जाएगा, क्योंकि याद रखिए यू कैन नॉट कंट्रोल योर चाइल्ड, वो जाएगा कि नहीं जाएगा तो वही डिसाइड करेगा। You can help them. You can help them and you can help them effectively when you build that connection. That's why connection is the base. No, it's a I think it's the only master key, I would say. It is. It is. आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, आप तभी कुछ न पॉजिटिव अपने बच्चे से या पॉजिटिव पेरेंटिंग कर पाओगे। और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए थोड़ा ना कि हम रूल्स नहीं लगा रहे, अब मैं कनेक्शन के चक्कर में अपने बेटे को रोज आइसक्रीम थोड़ा ना खाने दे रही हूँ, जहाँ पे जरूरी है वहां लगा रही हूँ ना बाउंड्री, कनेक्शन और जगहों पर बिल्ड कर रही हूँ, कनेक्शन बिल्ड कर रही हूँ उसको ये बोल के, कह रहे इतनी अच्छी ड्राइंग किसने बनाई, ये क्या बनाया है, ये कनेक्शन है। तो पेरेंटिंग के साथ कनेक्शन करिए, अपने इंटरैक्शंस, हम अपने बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हैं, इंटरैक्शंस है ना, हम पूरा दिन इंटरैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव इंटरैक्शंस को नेगेटिव से थोड़ा बढ़ा दीजिए, इंस्ट्रक्शन से ज्यादा बातें कीजिए। आई थिंक ये लर्निंग है मेरे उन सारे यूजर्स के लिए, मेरी उस कम्युनिटी के लिए जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बच्चा अपना स्टडी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, एंड देयर इज़ नो बॉन्ड, एंड द बॉन्ड विल ओनली कम द मोमेंट दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंसाइटफुल आपने पॉइंट हमारे सामने रखा है कि कम्युनिकेशन इज द की इन एनी फील्ड, आई वुड से, इन एनी फील्ड। ह्यूमन बीइंग्स। या नो, it's a actually a bitter truth. आप जितना ज़्यादा ओपन अप होगे अपने बच्चों के साथ, वो उतना ज़्यादा ओपन अप होंगे आपके साथ। हाँ, अपनी मिस्टेक्स शेयर करिए, अपनी बातें करिए, बहुत रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बन जाता है। और याद रखिए, हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चों ने गलतियां करनी है, बच्चे अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा, मेक योर पीस विद इट, दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट्स हाउ देयर जर्नी इज, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। नहीं, अंडरस्टूड एंड वेरी वेल डिस्क्राइब्ड ऑल्सो। इशिना, मूविंग फॉरवर्ड, हम कुछ एक फन चीज़ करते हैं, लाइक यू नो, हम मिथ्स पे बात करते हैं, तो कुछ ऐसे ही मिथ्स मेरी टीम ने निकाले हैं आपसे पूछने के लिए कि आप जितना ज़्यादा बच्चे को पैम्पर करते हो, बच्चा उतना ज़्यादा स्पॉइल होता है, ट्रू और फॉल्स? अगर बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करोगे तो बच्चे को बाउंड्रीज फॉलो करना नहीं आएंगी। सो पैम्परिंग मीन्स यू आर नॉट एबल टू पुट बाउंड्रीज। सो मतलब अगर आप पैम्परिंग कर रहे हो तो राइट वे ऑफ पैम्परिंग मतलब आप परमिसिव हो गए हो, बट आप बाउंड्रीज क्रिएट करो, तभी एक आप उनके साथ कंट्रोल, मतलब उनको आप कंट्रोल कर पाओगे। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मिनिमम बाउंड्रीज आर एसेंशियल। बच्चों को पता ही नहीं है कहाँ रुकना है। आप, if you can elaborate few quick tips like how to raise a healthy and a happy kid. Healthy and happy kid, give them a home environment that is healthy and happy, because that really affects them. Build that connection with them, and very important, accept them the way they are. So I have my 8-month-old and I was telling my mom yesterday that, Mama, I'm still waiting to see who this person is. Instead of thinking, Mama, I want him to be someone. He already is someone. Wow. Now I'm waiting to see who he is. What he becomes. What will be his nature. So please accept your children. Children really want to be accepted the way they are. I want this approach. Like I really want this approach. Like instead of me deciding his future and career or whatever, I should wait and I should see what this child is going to unravel. Yeah. It's a surprise for us. It is, right? No, it's such a like, you know, an honest opinion you have given to us. Can we control our children, Ishina? Can we? अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो कि बेटा ये पेपर है, इसके ऊपर ये 4 लाइंस लिखनी है, अगर आप गुस्सा कर लो, आप चिल्ला लो, आप प्यार कर लो, आप समझा लो, आप थप्पड़ भी लगा लो, पर वो बच्चा एक्चुअली
पेंसिल उठाएगा और वो 4 लाइन लिखेगा कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? अगर बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि नहीं लिखना, जो करना है कर लो, तो आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं. तो यू गेट योर आंसर. No, seriously, we can't control. एक ये भी नोशन होता है, if I lose my calm, I will lose my sanity. When I will lose my sanity, अब थप्पड़ लगने लगेंगे बच्चों को. ऐसा होता है? बहुत सारे पेरेंट्स थप्पड़ लगाते हैं बच्चों को. बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि ये मैं ठीक नहीं कर रही हूँ. सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ है. Are you a parent who's slapping a child and does not want to slap and wants to stop and knows that this is not taking me in the right direction? Then work on yourself. You can do it. You're at least halfway there. But if you feel that slapping my child is completely right, then maybe they will get conscious at one time. वो बच्चे ही करा देते हैं. वो बच्चे ही करा देते हैं. बस मेरा आपसे एक ये लास्ट क्वेश्चन है. आप मुझे प्लीज क्लियर करो, क्या हमारी पेरेंटिंग स्टॉप्स व्हेन आवर चिल्ड्रन बिकम एडल्ट्स? देखो, पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स. बच्चे तो हमारे बच्चे ही हैं. बट चेंज हो जाता है ना क्वालिटी. जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको स्पेस देनी पड़ेगी हमको. कंट्रोल हमारा कम होता जा रहा है. सो वी हैव टू रिमेंबर, वो वाला पार्ट भी आएगा एंड पेरेंट अकॉर्डिंगली. जो हम अभी इन्वेस्ट करेंगे बिगनिंग ईयर्स में, वो ही हमें आगे लेके जाएगा. सो पेरेंटिंग डजंट मे बी स्टॉप, बट of course we have to give them space and they become independent. And I think that time the relationship becomes more, I think it's even more beautiful. That's what I can see with my mom. So she's still my mom, but she's also a friend, a confidant, someone I can share with. That's because I feel like that since the beginning of our relationship. I think you have mentioned it very correctly. इस तरह की पेरेंटिंग अगर हम बचपन से देते हैं, इस तरह की अपब्रिंगिंग अगर हम बचपन से देते हैं, तो जब वो अपने अडल्टहुड में पहुंचते हैं तो वी एक्चुअली बिकम देयर फ्रेंड्स. एंड दैट इज अ वेरी हैप्पी फीलिंग व्हेन यू बिकम friends with your children and they start telling you their secrets and they even start assuming that you are their confidant. Is one of the biggest achievement, I would say, for any parent. Yes. So Ishina, thank you so much. It was a wonderful conversation I had and one of my best podcast, I would say, because I truly understand the meaning of positive parenting. It just not only articulate the way you are thinking, but it's a two-way communication, as you mentioned. It has to be a dialogue between your child and you. It was so enlightening. It was so enriched. I myself learned so much from you today and मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी अपब्रिंगिंग जब अपने बच्चे की करूँ तो इस तरह की चीज़ें करूँ. एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आपने जितनी भी पेरेंट्स को हेल्प किया है, आई एम 100% श्योर दैट दे हैव लव्ड योर अप्रोच as I do love your approach and my users are also going to love it. It was an amazing session. Hope you liked it. Thank you. I loved it. I enjoyed it. Thank you for being so gracious. Thank you for having me today, Apurva. You have a beautiful heart. You have a beautiful heart too. Thank you so much. Sharing your secrets, sharing your experiences with us. And I look forward to have you more in this podcast. Maybe we'll talk about a different topic, but we will certainly have you again. Sure, sure. Thank you so much, Ishina. Thank you.